آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آج بلائی گئی میونسپل اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ رہی ہنگامہ خیز، میونسپل انتظامیہ کو ملا گھر کا اہر۔ بی جے پی کے کارپوریٹر راج وانکھیڑے نے اٹھایا برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹس کی اجرائی میں تاخیر کا معاملہ۔ راستوں میں موجود گڑھوں کے معاملے پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین اور میونسپل افسران آئے آمنے سامنے۔ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسمنٹ افسران کی تربیت کے لیے ٹریزری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خصوصی ورکشاپ منعقد، ماہرین نے کی سرکاری افسران کی رہنمائی اور مالی کاموں میں شفافیت لانے کے لیے دیے مفید مشورے۔ کتابی سلسلہ عالمگیر ادب کے زیر اہتمام جشن ارتکاز پروگرام منعقد، عبدالرحیم ارمان کے شعری مجموعے حرف زیر لب کا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا شاندار اجرا۔ کامیاب اردو مشاعرہ بھی منعقد۔ اور پرانا جالنا علاقے کے بھوانی نگر میں پیش آیا دلخراش حادثہ، مندر میں لائٹ لگانے گئے 22 سالہ نوجوان کی الیکٹرک کرنٹ لگنے سے موت، علاقہ بھر میں رنج و غم کا ماحول۔ خبریں تفصیل سے۔ چیئرمین انیل مکریہ نے آج اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ طلب کی تھی جو کافی ہنگامہ خیز رہی۔ تمام جماعتوں کے منتخبہ اراکین نے مختلف مسائل پر انتظامیہ کو گھیرتے ہوئے میونسپل افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ شہریان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں انتظامیہ کی ناکامی پر ارکان نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیدائش و اموات کے سرٹیفکیٹس کے زیر التوا معاملہ سے لے کر شہر میں بڑھتی آوارہ کتوں کی تعداد تک مختلف مسائل پر اراکین نے آج اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں انتظامیہ سے جواب طلب کیا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن راج وانکھیڑے نے اجلاس میں پیدائش و اموات کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں تاخیر کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پیدائش و اموات کا سرٹیفکیٹ شہریان کے لیے ایک انتہائی اہم دستاویز ہونے کے باوجود اس کے لیے موصول ہونے والی درخواستوں پر بروقت کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس وقت میونسپل کارپوریشن میں 13,000 سے زائد درخواستیں زیر التوا ہونے کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ارکان نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتظامیہ شہریان کو بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر پا رہی ہے تو کم از کم پیدائش و اموات کے سرٹیفکیٹ مقررہ وقت پر جاری کر دیے جانے چاہیے۔ اس معاملے پر تمام ارکان نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اراکین کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریہ نے متعلقہ افسران کو فوری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے حکم دیا کہ درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر اندر متعلقہ پیدائش و اموات کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیے جائیں۔ اس کام میں کسی بھی قسم کی تاخیر یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی، ایسا واضح انتباہ بھی انہوں نے افسران کو دیا۔ دوسری جانب شہر میں آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے میں انتظامیہ کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے اراکین نے متعلقہ شعبے کے ذمہ داران کی خوب سرزنش کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اتنے بڑے شہر میں آوارہ کتوں کو پکڑنے کے لیے صرف 4 ڈاگ وین دستیاب ہے، ان میں سے ایک وین بھی مزدور دستیاب نہ ہونے کے باعث بند ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اراکین نے یہ بھی سنگین الزام عائد کیا کہ شہر کے 10 زون میں آوارہ کتوں کو پکڑنے کے لیے صرف 9 مزدور دستیاب ہیں۔ ایسے میں شہر میں بڑھتی آوارہ کتوں کی تعداد پر قابو پانے کے لیے میونسپل انتظامیہ کی منصوبہ بندی پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہریان کی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہونے کے باوجود مؤثر اقدامات نہ کیے جانے پر اراکین نے انتظامیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کتوں کو پکڑنے کے لیے ضروری افرادی قوت، گاڑیوں کی تعداد اور مؤثر منصوبہ بندی میں اضافہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایک طرف ترقیاتی کاموں میں تاخیر، دوسری طرف ہزاروں پیدائش و اموات کے سرٹیفکیٹ زیر التوا اور تیسری جانب بڑھتی آوارہ کتوں کی تعداد، ان تمام مسائل پر آج اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں میونسپل انتظامیہ کو اراکین کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر کتنی تیزی سے عمل درآمد ہوتا ہے، اس پر شہریان کی نظریں مرکوز ہیں۔ سمانیہ سبھاپتی صاحب، سمانیہ آیوکت، سمانیہ سبھاگرہ،
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार भटक्या कुत्र्यांच्या निर्जलीकरण व लसीकरण करून त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडण्यात येते. शहरामध्ये मोकाट व आक्रमक कुत्र्यांकडून विशेषतः लहान मुलांना चावा घेण्याच्या घटना घडत असल्याचे आपण पाहत आहोत. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास व सुरक्षिततेस धोका निर्माण होत आहे. कुत्र्यांनी नागरिकांना चावा घेतल्यानंतर संबंधित कुत्र्यांची काय व्यवस्था करण्यात येते? अशा कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन त्याची वैद्यकीय तपासणी, निरीक्षण, वर्गीकरण व आवश्यक उपचार करण्याची महानगरपालिकेची व्यवस्था काय आहे? तसेच वारंवार नागरिकांना चावा घेण्यास व आक्रमक कुत्र्याबाबत कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते याबाबत स्पष्टता मिळणे आवश्यक आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्य नागरिक यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून मोकाट व आक्रमक कुत्र्याबाबत तातडीने प्रभावी उपाययोजना व स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी अशी मागणी या प्रश्नाद्वारे करण्यात येत आहे. हे बघा, मला जायचं नाही, मग माननीय सभापती साहेब तसे आदेश देतील. मागील एका वर्षामध्ये किती ऑफलाईन फायली झाल्या आणि कोणत्या झाल्या त्याचे स्थायी समिती समोर सादरीकरण करा. आम्हाला त्याच्यात नाही घुसायचंय, पण सर्वसामान्यांना त्याचा दिलासा देणं हे आपलं प्रशासनाचं काम आहे आणि ते तुम्ही द्यायला पाहिजे. दर गुरुवारी बैठक होती, बाबा तुम्ही आणि सभापती महोदय, हा महत्वाचा विषय. आपल्याला त्यांच्या याच्यामध्ये बोलत जायचं नाहीये. त्याच्यामध्ये दर गुरुवारी होतं तर बाबा दर गुरुवारी जे काही ऑनलाईन होते एमजीपीचा विषय एमजीपीला म्हणावं लागणार. त्याच्यामुळे तुम्ही किती आश्वासन दिलं तर तुम्ही पाणी देणार नाही 15 दिवस आणि महिनाभर. सर स्पष्ट काय उगा दिशाभूल करू नका नगरसेवकांची. 3-4 महिने नाही कुठंच काय आलं पाणी अजून, पण ठीक आहे, तो न बोलता विषय, त्याच्यामुळे मला त्या खोलात जायचं नाहीये. माझा दुसरा विषय टाउन प्लॅनिंगच्या संदर्भात आहे. माननीय सभापती महोदय, टाउन प्लॅनिंगच्या याच्यामध्ये सातारा देवळामध्ये काही नागरिक माझ्याकडे आले होते. आतापर्यंत काही ठिकाणी जवळ किती त्याचा गरजे साहेबांनी त्याचा खुलासा माननीय सभापती महोदय यांनी करावा. अशा किती फायली पेंडिंग आहे की बऱ्याच नागरिकांच्या अशा तक्रारी की काही फायली ऑनलाईन होत नाही. तर त्या ऑनलाईन का होत नाहीये, आपण त्याच्यामध्ये ऑफलाईन घेतोय का, याचा खुलासा माननीय गरजे साहेबांनी करायचा. त्याच्यानंतर मी प्रश्न त्यांना विचारतो. हाईकोर्ट में क्लर्क ओहदों के तकर्रुरात के लिए मुनक़िदा टाइपिंग इम्तिहान में उम्मीदवारों को खानगी एग्ज़ाम सेंटर पर मुख्तलिफ टेक्निकी वजूहात के सबब परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा मुतासरा उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात की और उन्हें एक मतलबाती मेमोरेंडम पेश करते हुए उनसे डिमांड की कि उनका टाइपिंग का इम्तिहान दोबारा से लिया जाए। उम्मीदवारों का कहना है कि कई इम्तिहानी मराकिज़ पर कीबोर्ड्स, माउस, कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर में खराबी के बास इम्तिहान मुकर्ररा वक्त पर शुरू नहीं हो सका। बाज़ मराकिज़ पर दूसरी और तीसरी शिफ्ट का इम्तिहान भी नहीं हो सका। उम्मीदवारों ने 17 अगस्त को औरंगाबाद बेंच के रजिस्ट्रार को तहरीरी अर्जदाश्त देकर पूरे मामले की जांच और मुतासरा उम्मीदवारों के लिए दोबारा से इम्तिहान मुनक़िद करवाने का मुतालबा किया है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर सध्या आम्ही आहोत माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या समोर आहोत, जे की काल माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक पदाची पात्रता चाचणी झाली होती। महाराष्ट्रातील विविध सेंटरवर ही चाचणी कंडक्ट करण्यात आली, परंतु प्रत्येक आम्ही लक्षात घेतलं की आमच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या सेंटरवर ज्या अडचणी फेस कराव्या लागल्या, त्या चाचणीमध्ये जे काही सर्व्हर प्रॉब्लेम आले, कीबोर्डचे प्रॉब्लेम आले, या सर्व अडचणी आपण माननीय न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी आम्ही आज इथे माननीय रजिस्ट्रार साहेबांना एक निवेदन दिलेले आहे। या निवेदनाद्वारे आम्ही त्यांना मागणी केलेली आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातील या लिपिक टंकलेखक पदासाठी जे विद्यार्थी पात्र झाले होते पात्रता चाचणीसाठी, यांची पुनर्परीक्षा घेण्यात यावी। आणि आमची कालही हीच मागणी होती। यासाठी कॉकरोच जनता पार्टी CJPचे माननीय श्री अभिजित दादा दिपके आमच्यासोबत रात्रीपर्यंत तिथे ठिय्या आंदोलनाला बसले होते। तरी आम्ही आता सध्या संविधानिक मार्गाने माननीय उच्च न्यायालयाकडे आमची मागणी आम्ही केलेली आहे। तरी याच्या पुढील अपडेट्स आम्ही आपल्याकडे लवकरात लवकर पोहोच करू। धन्यवाद। रास्तों में मौजूद गड्ढों से शहरियान को राहत फराहम करवाने की गर्ज से पैवंदकारी का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिस पर 99 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये इत्तला मेयर समीर राजूरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि इस काम के लिए एजेंसी मुकर्रर कर ली गई है और उन्हें वर्क ऑर्डर के साथ रास्तों की फहरिस्त भी दे दी गई है।
मेयर समीर राजूरकर ने सहाफ़ियों को बताया कि शहर के अहम रास्तों के गड्ढों को पैच वर्क के जरिए बंद करने की खातिर हाल ही में टेंडर इजराई की गई थी। एजेंसी फिक्सिंग के बाद इंतजामिया की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। वर्क ऑर्डर के साथ ही तरजीही बुनियाद पर जिन रास्तों के गड्ढों को बंद करने पैच वर्क करना है, उन सभी रास्तों की फहरिस्त भी कॉन्ट्रैक्टर को दी जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के रास्तों पर हो चुके गड्ढों का मसला गुज़िश्ता जनरल बॉडी मीटिंग में गूंजा था। गड्ढों की वजह से शहरियान को होने वाली परेशानी के पेश नज़र म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अहम रास्तों के गड्ढों को तरजीही बुनियाद पर बंद करने 99 लाख रुपये खर्च करने का फ़ैसला किया है। इस फंड से रास्तों के गड्ढों के पैच वर्क करने हाल ही में टेंडर इजराई की गई थी। अब मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को रास्तों की फहरिस्त के साथ वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है। 2 दिनों में मुंतखबा रास्तों पर पैच वर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इत्तला भी मेयर राजूरकर ने दी। उन्होंने मज़ीद बताया कि नई वाटर सप्लाई स्कीम के लिए खोदे गए गड्ढों के अलावा FC केबल और गैस पाइपलाइन के लिए की गई रास्तों की खुदाई का इसमें शुमार नहीं है। इन गड्ढों को बंद करना और रास्तों का रिस्टोरेशन करना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और गैस कंपनी के ज़िम्मे है। जबकि आज मुनक़िदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सड़कों के गड्ढों पर ओहदेदारान और अफसरान फिर आमने सामने आ गए। शहर में सड़कों पर पड़े गड्ढों के मसले को लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक बार फिर ओहदेदारान ने इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की। बहस व मुबाहसे के दौरान स्टैंडिंग कमेटी के अरकान ने मतालबा किया कि श्रावण महीना और त्योहारों के पेश नज़र सड़कों के गड्ढे फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। ख़ास तौर पर गणेश उत्सव से कबल शहर के जुलूस के रास्तों समेत दीगर अहम सड़कों पर मौजूद गड्ढों को बंद करने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने तैयारी शुरू कर दी है। सड़कों पर डामर से पैचवर्क करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मीटिंग में अरकान ने इंतज़ामिया से मतालबा किया कि गणेश उत्सव से पहले जुलूस के तमाम रास्तों की जांच करके वहां मौजूद गड्ढों को तरजीही बुनियादों पर बंद किया जाए। शहरियान को गड्ढों के बास होने वाली परेशानी को देखते हुए इस काम में मज़ीद ताख़ीर न की जाए। ये मतालबा भी अरकान की जानिब से आज किया गया। गुंठेवारी कानून के तहत गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने के लिए बेटरमेंट चार्जेस में सहूलत तो दी गई है, लेकिन एंसेलरी चार्जेस और साइड मार्जिन के कामों पर आयद किए जाने वाले जुर्माने के सबब दरख्वास्त गुजारों पर माली बोझ बरकरार है, जिसकी वजह से बेटरमेंट चार्जेस में रियायत देने की स्कीम बेअसर साबित होने लगी है। वाज़ेह रहे कि गुंठेवारी इलाकों में मकानात की तामीर पर आयद बेटरमेंट चार्जेस में 100% छूट, जबकि खुले प्लाटों के लिए 50% रियायत दी गई है, लेकिन एंसेलरी और साइड मार्जिन पर 10% चार्ज आयद करने के साथ ही उस पर मज़ीद 10% जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। इसके नतीजे में गुंठेवारी रेगुलराइजेशन के लिए शहरियान को अब भी लाखों रुपये खर्च करना पड़ रहे हैं। खुसूसी रियायती स्कीम नाफिज हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुतवक्के तादाद में शहरियान की जानिब से फ़ाइलें दाखिल नहीं की गई हैं। इस सूरत हाल के बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया की इस स्कीम पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बीजेपी महायुति की हुकूमत आने के बाद गुंठेवारी ज़मीन के मालिकान को राहत देने का ऐलान किया गया था। मेयर समीर राजूरकर की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने खुसूसी रियायत देने से मुतालिक सर्कुलर भी जारी किया। ताहम बेटरमेंट चार्जेस में रियायत के अलावा दीगर माली बोझ बरकरार रहने की वजह से शहरियान को अमली तौर पर ज़्यादा राहत नहीं मिल सकी है। मकान की तामीर पर आयद बेटरमेंट चार्जेस मुकम्मल तौर पर माफ़ किए गए हैं, जबकि खुले प्लॉट के लिए इसमें सिर्फ 50% रियायत दी गई है, लेकिन एंसेलरी और साइड मार्जिन की मुकर्ररा फ़ीस अब भी वसूल की जा रही है और उसके साथ जुर्माना भी बरकरार है। नतीजतन रियायत मिलने के बावजूद रेगुलराइजेशन की हतमी रकम खासी ज़्यादा रहती है। एंसेलरी पर 10% फ़ीस आयद करने के बाद इस पर मज़ीद 10% जुर्माना वसूल किया जाता है। इसी तरह साइड मार्जिन पर भी 10% फ़ीस और उस पर 10% जुर्माना आयद किया जा रहा है। इस तरह दोनों अज्जा पर अलग अलग 20% माली बोझ पड़ता है। बड़े प्लाटों के मामलात में ये रकम लाखों रुपये तक पहुंच जाती है। बेटरमेंट चार्जेस माफ़ करके एक तरफ रियायत का ऐलान किया गया,
लेकिन एंसिलरी और साइड मार्जिन पर जुर्माना कम न किए जाने के बायस रेगुलराइजेशन का मजमूई खर्च कम नहीं हुआ है। शहरियान का मुतालबा है कि इस जुर्माने में भी कमी की जाए, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया की जानिब से इस सिलसिले में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया। सरकारी मामलात में क़ानून की पाबंदी को अव्वलीन तरजीह दी जाए, ये मशवरा प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल सुहासिनी गोतमारे ने दिया। वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट अफसरान की तरबियत के लिए मुनक़दा वर्कशॉप से मुखातिब थीं। वाज़ेह है कि सरकारी माली मामलात में दुरुस्तगी, शफ़ाफ़ियत और मुक़र्ररा क़ानून की सख्ती से पाबंदी इंतहाई अहम है। माली मामलात को मज़ीद मुनज़्ज़म और बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बाहमी तालमेल को मज़ीद मजबूत करना ज़रूरी है। इन ख़यालात का इजहार प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल सुहासिनी गोतमारे ने आज औरंगाबाद में किया। अकाउंटेंट व ट्रेजरी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस और जॉइंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज दफ्तर के मुश्तरका ताउन से ज़िले के ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एक मुश्तरका वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये वर्कशॉप ज़िला कलेक्टर ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हॉल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जितेंद्र बी गुप्ता, जॉइंट डायरेक्टर रेहाना काजी, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर वैद्यनाथ शेड़के, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर DN कोतवरवार, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, एडिशनल ट्रेजरी अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट्स ऑफिसर्स और अकाउंट्स व ट्रेजरी महकमे के अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। सुहासिनी गोतमारे ने कहा कि माली मामलात की अकाउंटिंग के दौरान मुनासिब अकाउंट हेड का इस्तेमाल ज़रूरी है। इससे गलत इंदराजात और गलत अकाउंटिंग की दर्जाबंदी से बचा जा सकता है। उन्होंने ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स को हिदायत दी कि ज़ेरे इल्तिवा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स बर वक्त पेश करने और अकाउंटिंग से मुताल्लिक़ खामियों को फौरी तौर पर दूर करने पर खुसूसी तवज्जो दें। वर्कशॉप के दौरान यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, GST से मुताल्लिक़ उमूर, अकाउंटिंग का तरीक़ाकार, गलत अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन और ज़ेरे इल्तिवा बिलों समेत मुख्तलिफ माली और अकाउंटिंग से मुताल्लिक़ उमूर पर अफसरान की रहनुमाई की गई। सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जितेंद्र बी गुप्ता ने ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स की सतह पर अंजाम दी जाने वाली अकाउंटिंग से मुताल्लिक़ कार्रवाई के बारे में तफसीली रहनुमाई की। जॉइंट डायरेक्टर रेहाना काजी ने वर्कशॉप के इनेकाद के मकसद और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की निज़ामत डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर सैयद इरफान ने की। TMY स्कीम के तहत ताल्लुक़ा पैटर्न की 18,444 फ़ाइलों को मंजूरी दी जा चुकी है। ये इत्तला MLA विलास भुमरे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पैटर्न ताल्लुक़े का एक भी मुस्तहिक ख़ानदान घरकुल स्कीम से महरूम न रहे, इस मकसद से रुकन असम्बली विलास भुमरे और पंचायत समिति की चेयरपर्सन विशाली विनोद बोम्बले ने हुकूमत की सतह पर मुसलसिल पैरवी की। उनकी कोशिशों को कामयाबी मिली है और इंतज़ामिया की जानिब से 18,444 अफराद की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। ये इत्तला रुकन असम्बली विलास भुमरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि जो शहरी अब तक घरकुल स्कीम से महरूम हैं वो यौम आज़ादी से अपने अपने गाँव में मुनक़िद होने वाली ग्राम सभाओं में तजावीज़ पेश करें और क़रारदाद में अपना नाम दर्ज करवाएं। इंतज़ामी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जल्द ही मुस्तहिक़ीन को फ़ंड फराहम किया जाएगा, जिसके बाद घरकुल मकानात की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। ये इत्तला भी रुकन असम्बली विलास भुमरे ने दी है। इस मौके पर शिव सेना के ज़िला नायब सदर विनोद पाटिल बोम्बले, साबिक़ कारपोरेटर भूषण कावसनकर, ज्योति काकड़े, पंचायत समिति रुकन दादा साहब गलांडे, मनोज गायके, सखूबाई झारखड़ और नामदेव खरात समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। लाभार्थ्यांनी देखील आपल्या गावात जी 15 ऑगस्टची ग्रामसभा असेल, आता 15 ऑगस्ट दिवशी ग्रामसभा काही ठिकाणी होतात, काही ठिकाणी अगोदर घेतात, काही ठिकाणी नंतर घेतात। तर या अनुषंगाने लाभार्थ्यांनी आपलं त्या ग्रामसभेमध्ये आपलं नाव नोंदवावं, जेणेकरून आपण घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची देखील जबाबदारी लाभार्थ्यांची असते। आपण त्या ग्रामसभेला हजर राहिले पाहिजे। या ठिकाणी सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, सभापती असतील, उपसभापती असतील, जिल्हा परिषद मेंबर असतील, शिवसेनेचे पदाधिकारी असतील, यांनी देखील आपल्या गावातला लाभार्थी वंचित नाही राहिला पाहिजे याची काळजी घेऊन येणाऱ्या ग्रामसभेत
जो लाभार्थी वंचित राहिला असेल याचं नाव त्या ठिकाणी ग्रामसभेमध्ये आलं पाहिजे. किताबी सिलसिला आलमगीर अदब के ज़ेर एहतमाम जश्न इर्तिकाज़ मुनक़िद किया गया, जिसके तहत अब्दुल रहीम अरमान के शेरी मजमुए हर्फ ज़ेर लब का इजरा मेहमानों के हाथों अमल में आया. इसी तरह एक कामयाब मुशायरा भी इस मौके पर मुनक़िद किया गया. बुज़ुर्ग शायर व नक्काद मिर्ज़ा असलम की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में BCUD के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल के हाथों मज़कूरा किताब का इजरा अमल में आया. इस मौके पर डॉक्टर शकील अहमद ख़ान, डॉक्टर क़ाज़ी नवीद सिद्दीक़ी और डॉक्टर असवद गौहर मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से इस तक़रीब में शरीक थीं. इसी तरह दूसरी नशिस्त में डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल की सदारत में एक मुशायरा भी मुनक़िद किया गया, जिसमें असलम मिर्ज़ा, फ़ारूक शमीम, ख़ान शमीम, अब्दुल रहीम अरमान, रज़ा जानवी, प्रोफेसर सलीम मुहियुद्दीन, बशारत अली ख़ान अख्तर, बशीर अहमद राही और दीगर मकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया. मुशायरे की निज़ामत अहमद औरंगाबादी ने की. इस मुशायरे में उर्दू दोस्त हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की. मुसद्दस के गोशबार जाविये मौजूद हैं, नज़ीर अब्बासी है, अकबर इलाहाबादी है, लेकिन इन तमाम के बावजूद अरमान साहब ने हर्फ ज़ेर लब में अपना अनोखा, अपना अलग से उस्लूब भी तय किया है. और ये उस्लूब हिंदू नसाइश से कायम नहीं होता, ये कायम होता है माशरे की ज़माना वाला कदरों का शदीद एहसास और उस एहसास के इजहार के जरिए. माशरे की ज़माना वाला कदरें वो चाहे इक़्तिदार के गलियारे हो, हमारे तुल्ला हो, हमारे मुबल्लिग़ हो, वाइज हो, हमारे फकीहान शहर हो या अमीरान शहर हो, इनकी कौम के कहीं लापरवाही, कौम के कहीं बेतवज्जोही और बारहा मुझाया नहीं था. जमालिया से कोई इस शेर के जरिए खूबसूरत पैगाम लेकर रुखसत हुए अमान वाले. अब मैं अजमेर खान नजीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और आप तमाम के दरमियान अपना सलाम दें. मसूर हो गए हैं अपने मकान में, उससे किनारा हो यही अक्ल भी कहे, उससे किनारा हो यही अक्ल भी कहे. इतनी सकत कहाँ थी दिले नातवान में, वो जब निगाह उठाए तो सब जिगर हिले, वो जब निगाह उठाए तो सब जिगर हिले. ऐसा निशा कहाँ है तीरों कमान में, ऐसा निशा कहाँ है तीरों कमान में. और शेर यूं के वो लौटा तो हमें पुकारेगा सबसे कब्ल. गुजरने को कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने आप तक पहुंचा नहीं था. अरे अच्छा है, गुजरने को कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने आप तक पहुंचा नहीं था. जो सोचा था वही होता नहीं था, जो सोचा था वही होता नहीं था, जो होता है कभी सोचा नहीं था. कैसे कैसे जनाब बिकते हैं, मिंबरों पर सवाब बिकते हैं. शहर में धूप बेचने वालों, गांव में आफ्ताब बिकते हैं. शर्त में हारा गया मैं और दरिया को करके आग, तो होठों को दे के प्यास. दरिया को करके आग तो होठों को दे के प्यास. कुछ ऐसे करबला से गुजारा गया हुआ है. दरिया को करके आग तो होठों को दे के प्यास. कुछ ऐसे करबला से गुजारा गया मैं, और जब बात बन सकी न कोई चाल ढाल से. कांग्रेस के राज्यसभा रुकन चंद्रकांत हंडोरे की क़यादत में मुल्क भर में मुंडन आंदोलन किया गया, जिसमें ज़िला जालना के भीम शक्ति ने भी इस एहतजाज में शिरकत की
اور तंजीम के अहदेदारान व अरकान ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया और अपने सर मुंडवाए। जालना ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने आज भीम शक्ति तंजीम की जानिब से मुंडन एहतजाज किया गया। ये एहतजाज कांग्रेस के राज्यसभा रुकन चंद्रकांत हंडोरे की हिदायत पर किया गया। इस मौके पर भीम शक्ति तंजीम के अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने बीजेपी के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। कुछ कारकुनान ने मुंडन करवाकर हुकूमत की पॉलिसियों और बीजेपी की मुबैना ज़ात परस्ताना पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने बीजेपी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भीम शक्ति तंजीम के अहदेदारान ने वाज़ेह किया कि राज्यसभा रुकन चंद्रकांत हंडोरे की जानिब से आइंदा जो भी हिदायत दी जाएगी उसके मुताबिक एहतजाज किया जाएगा। अहदेदारान ने कहा कि चंद्रकांत हंडोरे की क़यादत पर हमें मुकम्मल एतमाद है और मुस्तक़बिल में उनकी जानिब से दी जाने वाली हर हिदायत हमें मंजूर होगी। उनकी हिदायत पर बीजेपी के खिलाफ मज़ीद शिद्दत के साथ एहतजाज किया जाएगा, ऐसा इंतबाह भी इस मौके पर दिया गया। इस एहतजाज के बाद ज़िला कलेक्टर दफ्तर के अहाते में कुछ देर के लिए सियासी माहौल गर्म हो गया था। मुजाहिरीन ने ज़ोरदार नारेबाजी करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर ज़िला सदर प्रकाश घुले, मराठवाड़ा सेक्रेटरी भास्कर साड़वे, समाधान रत्न पारखे, आसाराम चोरमारे, सुनील तोरेवार, गौतम सदावर्ते, अशोक साळवे, समाधान शिंदे, महेंद्र मोरे समेत दीगर अहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। भीमशक्तीच्या वतीने मी प्रकाश घुले, भीमशक्ती जिल्हा अध्यक्ष जालना। आज आम्ही साहेबांच्या आदेशाने, हंडोरे साहेबांच्या आदेशाने आज आम्ही मुंडन आंदोलन करत आहोत आणि यापुढेही जर असे अन्याय वाढवून आम्हाला रोडवर उतरून भीमशक्ती संघटना ही महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडेल आणि ह्या सरकारला सलोख पळो असं करावं लागेल असे आमचे भीमशक्तीचे आदेश होणार आहेत। आणि तरी या भाजप सरकारचा आम्ही धिक्कार आणि निषेध करत आहोत। मुंडन आंदोलन आणि हे मुंडन आंदोलन आम्ही की जालना या ठिकाणी करत आहोत। आणि भाजप सरकार ही ज्या या देशात गलिच्छ राजकारण करत आहे, त्या ठिकाणी मल्लिकार्जुन खरगे साहेब ज्या ठिकाणी कार्यक्रमाला गेले तिथं त्यांनी गोमूत्र शिपून तिथं जर त्या घटना करत असेल त्याला स्वच्छ करण्याचे पवित्र, तर ह्या घटनेच्या बद्दल आम्ही इथं तीव्र निषेध करतो आणि त्या भाजप सरकारचं इथून पुढं जाहीर निषेध करतो। तेज रफ्तारी और ड्राइवर्स की लापरवाहियों के सबब शहर में सड़क हादसात में इजाफा होने लगा है। इसी तरह के दो अलग अलग हादसात में दो खवातीन शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई हैं। शहर में तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ियां चलाने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है, जिसके सबब हादसात में इजाफा होने लगा है। इसी तरह के दो अलग अलग हादसात में दो खवातीन शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गईं। ये दोनों हादसात जालना रोड के रामानगर और MIT कॉलेज के इलाके में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पेश आए। दोनों मामलात में नामालूम कार ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए गए हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 14 अगस्त को सुबह तकरीबन 11:15 बजे मुकुंदवाड़ी की साकिन इमराई बाई वाईजीनाथ कुम्भार जालना रोड उबूर कर रही थीं। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें ज़ोरदार टक्कर मार दी। हादसे में इमराई बाई की कमर के दोनों जानिब फ्रैक्चर हुआ, जबकि रान, हाथ की कोहनी, चेहरे, कमर और टांग पर भी शदीद चोटें आईं। इस मामले में उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में नामालूम कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर होडगे इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि दूसरा हादसा 12 अगस्त को MIT कॉलेज के इलाके में पुल के करीब वाक़े ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पेश आया। सड़क उबूर करते वक्त एक खातून को तेज़ रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गई। खातून के बेटे सिद्धार्थ दत्ता जाधव की शिकायत पर सातारा पुलिस स्टेशन में नामालूम कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तफ्तीश पुलिस अहलकार शेख कर रहे हैं। तालुका फुलंबरी के पालफाटा इलाके में पीर की शाम एक तेज़ रफ्तार डंपर जो कि रेत से भरा हुआ था, बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया। हादसा इतना शदीद था कि उसमें डंपर बुरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हादसे में डंपर ड्राइवर सुधाकर मधुकर जुमड़े गाड़ी की कैबिन में फंस गए थे। मकामी शहरियान ने फौरी तौर पर 2 JCB की मदद से
तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद उन्हें बहिफाजत बाहर निकाल लिया। हादसे में ड्राइवर के पैरों पर शदीद चोट आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए घाटी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं डंपर में मौजूद क्लीनर संतोष हरिभाऊ निकालजे भी शीशे लगने से जख्मी हुए हैं और उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रात देर तक इस हादसे की इत्तला पुलिस को नहीं दी गई थी। इस हादसे के बाद इलाके में हलचल मच गई। मकामी शहरियान ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रेत की गैर कानूनी या बेकाबू नकलो हमल करने वाले तेज़ रफ्तार हाईवा और डंपर ड्राइवरों की रफ्तार अक्सर बेहद ज़्यादा होती है। उन्हें सड़क पर दूसरी गाड़ियों और राहगीरों की हिफाजत की कोई परवाह नहीं होती और ऐसा महसूस होता है जैसे सड़क पर सिर्फ उन्हीं का राज है। पाल फाटा का इलाका आमतौर पर काफ़ी मसरूफ़ रहता है, लेकिन खुशकिस्मती से हादसे के वक्त जाए वक़ू पर कोई दूसरा शख्स या गाड़ी मौजूद नहीं थी, वरना ये हादसा बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकता था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि डंपर इंतहाई लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में चलाया जा रहा था। अचानक ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल ख़त्म हो गया और डंपर बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया। मकामी शहरियान ने जेसीबी की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को गाड़ी से बाहर निकाला। मंदिर में लाइट लगाने गया एक 22 साला नौजवान बिजली का करंट लगने से फौत हो गया। ये दिलखराश हादसा खदीम जालना शहर में पेश आया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पुराना जालना इलाके के भवानी नगर के रिहायशी 22 साला नौजवान नकुल संतोष बांडलकर की बिजली का शदीद झटका लगने से अफसोसनाक मौत हो गई। ये वाक़या पीर की शाम मोती तालाब के इलाके में वाक़े कोरोवंदेश्वर महादेव मंदिर के करीब पेश आया। मकामी शहरियान के मुताबिक मोती तालाब के उक़ब में कोरवंदेश्वर महादेव मंदिर वाक़े है। शरावन महीने के बाद पहले पीर को मंदिर में ख़वातीन और मर्द अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी दौरान शाम के वक्त मंदिर के अहाते में वाक़े एक छोटे मंदिर के नज़दीक नस्ब बरक़ी खमखमा रोशन करने के लिए नकुल बांडलकर तार हाथ में लेकर लाइट जोड़ रहे थे कि अचानक तार में बरक़ी रौ दौड़ गई और वो शदीद करंट लगने से ज़मीन पर गिर पड़े। वाक़े के फ़ौरन बाद मकामी अफराद ने नकुल को एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। बाद अज़ा उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल की गई। इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। जालना शहर के मालेगांव इलाके में एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन और बैटरी की दुकान का शटर तोड़कर नामालूम चोर 3 लाख रुपये मालियत का सामान चुरा कर फरार हो गए। ज़राए का कहना है कि शेख वसीम शेख रज़ाक की जालना के मालेगांव बाईपास रोड इलाके में मालेगांव ऑटो इलेक्ट्रीशियन नामी दुकान है। इस दुकान में इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरी और मोटरसाइकिल की बैटरियों का कारोबार किया जाता है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक 16 अगस्त 2026 की रात तकरीबन 9:30 बजे वो रोज़ानी की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे, जिसके बाद 17 अगस्त की सुबह तकरीबन 6 बजे जब वो दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के शटर का सेंट्रल लॉक टूटा हुआ और शटर उखड़ा हुआ नजर आया। दुकान के अंदर जायजा लेने पर मुख्तलिफ अक़साम की बैटरियां गायब पाई गईं। शिकायत में कहा गया है कि नामालूम चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद तकरीबन 3 लाख रुपये मालियत की बैटरियां चोरी कर ली हैं। वाक़े के बाद दुकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी और पंचनामा करने और मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। शटर और लॉक तोड़कर दुकान में दाखिल होने के बाद चोरी पहले से मंसूबाबंद होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से इलाके के CCTV फुटेज, चोरी शुदा बैटरियां फरोख्त करने की कोशिश और मुश्तबा अफराद की नक़्ल हरकत की बुनियाद पर तहक़ीक़ात किए जाने का इम्कान है। शहर में एक बार फिर साइबर माली धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें एक खातून के अकाउंट से मुबैना तौर पर 17,82,000 रुपये उड़ा लिए गए। मुतासिरा खातून की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। शिकायत कुनिंदा सारिका अविनाश तलवानी के मुताबिक 24 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे से रात 9:30 के दरमियान वो अपने घर पर मौजूद थीं। इसी दौरान किसी नामालूम शख्स ने उनके SBI बैंक अकाउंट से बार बार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। मुख्तलिफ लेन देन के जरिए मजमूई तौर पर 17,82,268 रुपये मुंतकिल करके माली धोखाधड़ी की गई। इस मामले में सारिका तलवानी की शिकायत पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार की निगरानी में मामले की तफ्तीश जारी है, जबकि
पुलिस नामालूम मुलजिम का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बुलाई गई म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रही हंगामा खेज। म्यूनिसिपल इंतजामिया को मिला घर का अहेर। बीजेपी के कारपोरेटर राज वानखेड़े ने उठाया बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताखीर का मामला। रास्तों में मौजूद गड्ढों के मामले पर स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन और म्यूनिसिपल अफसरान आए आमने सामने। ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट अफसरान की तरबियत के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन ने की सरकारी अफसरान की रहनुमाई और माली कामों में शफाफियत लाने के लिए दिए मुफीद मशवरे। किताबी सिलसिला आलमगीर अदब के ज़ेर एहतमाम जश्न इर्तिकाज़ प्रोग्राम मुनक़िद। अब्दुल रहीम अरमान के शेरी मजमुए हर्फ ज़ेर लब का मेहमानों के हाथों किया गया शानदार इजरा। कामयाब उर्दू मुशायरा भी मुनक़िद। और पुराना जालना इलाके के भवानी नगर में पेश आया दिलखराश हादसा। मंदिर में लाइट लगाने गए 22 साला नौजवान की इलेक्ट्रिक करंट लगने से मौत। इलाका भर में रंजो गम का माहौल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।